ناظرین آپ کو بتائیں کہ کیپٹن ریٹائرڈ عثمان کی بطور چیف کمشنر اسلام آباد اور چیئرمین CDA تقرری درست قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے محمد عثمان کو کام سے روکنے کی ابتدا مسترد کر دی ہے۔ چیف کمشنر CDA بورڈ کے رکن ہے، ممبر ہی چیئرمین CDA ہوتا ہے۔ وزارت قانون نے عدالت میں جواب جمع کروا دیا ہے۔ مزید جانیں گے نمائندہ 92 نیوز حسین احمد سے۔ حسین احمد بتائے گا وزارت قانون کی جانب سے جواب میں کیا کہا گیا؟ جی دیکھیں، یہ چیف کمشنر اسلام آباد جو ہیں وہ بطور چیئرمین CDA بھی کام کر رہے ہیں، اور ان کے 2 عہدے رکھنے پر جو تقرری تھی اس کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین CDA کیپٹن ریٹائرڈ عثمان کو کام سے روکنے کی ابتدا مسترد کر دی ہے۔ وزارت قانون نے کیپٹن ریٹائرڈ عثمان کی چیف کمشنر اور چیئرمین CDA تقرری درست قرار دے دی ہے۔ وزارت قانون کے جواب میں کہا گیا ہے کہ قانون کے مطابق چیف کمشنر CDA بورڈ کے ممبر ہیں اور ممبر ہی چیئرمین CDA ہوتا ہے۔ عدالت کی جانب سے ریمارکس دیے گئے کہ CDA آرڈیننس میں درج ہے کہ چیف کمشنر CDA بورڈ کا ممبر ہوگا۔ وفاقی حکومت کسی بھی بورڈ ممبر کو چیئرمین، وائس چیئرمین اور مالیاتی مشیر مقرر کر سکتی ہے۔ درخواست گزار نے کہا کہ وزارت قانون کے جواب میں 4 نقائص ہیں۔ ابھی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن CDA اور کیپٹن ریٹائرڈ عثمان کے جوابات کا انتظار ہے۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل کی جانب سے کہا گیا، جس کے بعد عدالت کی درخواست گزار کو ہدایت کی گئی ہے کہ آپ اپنے دلائل محفوظ رکھیں، آئندہ سماعت تیاری کے ساتھ کر کے آئیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فریقین کو جواب جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے کیس کی سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ جی شکریہ حسین احمد۔ سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کو ایک بار پھر اسمبلی میں واپس جانے کا مشورہ دے دیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے، عوام نے نمائندوں کو 5 سال کے لیے منتخب کیا ہے، ملک کی معاشی حالت دیکھیں، کروڑوں لوگ سیلاب سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ تحریک انصاف کو اندازہ ہے 123 سیٹوں پر ضمنی انتخابات کے کیا اخراجات ہوں گے۔ اسپیکر کا اپنا طریقہ کار ہے، ہم کیسے مداخلت کر سکتے ہیں؟ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی کے استعفوں کی مرحلہ وار منظوری کے خلاف کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے PTI کو اسمبلی میں واپسی کا مشورہ دیتے ہوئے ریمارکس دیے کہ عوام نے ارکان اسمبلی کو 5 سال کے لیے منتخب کیا ہے، پارلیمان میں کردار ادا کرنا ہی اصل فریضہ ہے۔ PTI کے وکیل فیصل چودھری نے بتایا کہ عمران خان نے سیلاب متاثرین کے لیے 13.5 ارب روپے جمع کیے۔ PTI ارکان اپنے حلقوں میں سیلاب متاثرین کی مدد کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کے پاس پینے کا پانی ہے، نہ کھانے کو روٹی، بیرون ملک سے لوگ متاثرین کی مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ ملک کی معاشی حالت بھی دیکھیں، گہرائی سے قانون کا جائزہ لے کر فیصلہ دیا ہے۔ اسپیکر کا اپنا طریقہ کار ہے، ہم کیسے مداخلت کر سکتے ہیں۔ اس قسم کی مداخلت عدالت کے لیے کافی مشکل کام ہے۔ ہائی کورٹ کے حکم میں واضح کہا گیا کہ اسپیکر کے مرحلہ وار استعفوں کی منظوری کی قانونی حیثیت ہے۔ بظاہر اسپیکر کے اختیار میں مداخلت سے آرٹیکل 69 متاثر ہو سکتا ہے۔ عدالت کو مطمئن کریں کہ ہائی کورٹ کے حکم میں کیا کمی ہے۔ ہر ادارے کی اپنی صلاحیت ہوتی ہے۔ عام انتخابات کے لیے پورا نظام ہوتا ہے، ضمنی انتخابات میں ٹرن آؤٹ بھی کم ہوتا ہے۔ عدالت سے تحریک انصاف کو مرحلہ وار استعفوں کی منظوری کے خلاف کیس تیار کرنے کا ایک اور موقع دیتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ خاتون جج کو دھمکانے پر توہین عدالت کا کیس، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان پر آج فرد جرم عائد کی جائے گی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ 2:30 بجے کیس کی سماعت کرے گا۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، FC اور رینجرز کے اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں بلال آفریدی سے جو اس وقت پر موجود ہیں۔ جی بلال، آگاہ کیجیے گا۔ آج بالکل اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر سیکیورٹی کے انتہائی غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی نفری کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اسلام آباد پولیس کے 700 سے زائد پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں ہائی کورٹ کے اندر بھی، اور ہائی کورٹ کے جو کمرہ عدالت ہے، احاطہ عدالت ہے، اور اس کے بعد جو ہائی کورٹ کی بلڈنگ ہے اس کے اطراف میں اندر اور باہر جو ہے وہ 700 پولیس اہلکار تعینات کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رینجرز اور FC کی بھی بھاری نفری اسلام آباد ہائی کورٹ کے اطراف میں اور احاطہ عدالت میں تعینات کی گئی ہے، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اطراف میں جو راستے ہیں ان کو خاردار تارے لگا کر جب عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے، اور جو اسپیشل پاسز جاری کیے گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ رجسٹرار آفس کی جانب سے وکلاء کے لیے بھی، میڈیا نمائندگان کے لیے بھی، اور ان لوگوں کے لیے بھی کہ جن کے آج ہائی کورٹ میں مختلف عدالتوں میں جو ہیئرنگز ہیں ان کو بھی خصوصی آج پاسز جاری کیے گئے، اور پاسز کے بغیر کسی کو بھی ہائی کورٹ کے احاطے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔
जबकि समाअत का जो वक्त है वो 2:30 बजे मुकर्रर किया गया है, लेकिन 2:30 बजे से कबल ही जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतराफ़ में जो सड़कें हैं इनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा, ट्रैफिक के लिए भी और पैदल जो लोग सफ़र करें उनके लिए भी इस रास्ते को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। जबकि SSP ऑपरेशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतराफ़ में सिक्योरिटी की जो है वो जो सूरत हाल है उसका जायज़ा लेने भी अब से कुछ देर कबल जो है वो यहाँ पर आए थे। और इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो अंदर की सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी डिवीज़न के अफसरान जो है वो उसकी निगरानी करेंगे। इसके साथ साथ जो सेफ सिटी कैमरेज़ हैं उनके ज़रिए भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतराफ़ में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। और कारकुनों को जो है पुलिस का कहना है कि कारकुनों को किसी भी सूरत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के करीब या अदालत में जो है वो जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। PTI के सिर्फ उन्हीं रहनुमाओं को इमरान खान के साथ अंदर जाने की इजाज़त होगी जिनके पासेस जारी किए गए हैं रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से। इसके अलावा किसी को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ठीक है, पास के बगैर कोई भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया आपका बिलाल आफरीदी। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे डेंगू के कारी वार की। वफाकी दारुल-हुकूमत में डेंगू के वार ताहाल जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान डेंगू के मजीद 96 केसेस रिपोर्ट हुए। तादाद 1657 तक जा पहुंची है। अब तक 5 अफराद वायरस का शिकार होकर जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। इस्लामाबाद से तैयार करदा ये रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में डेंगू बेकाबू, रोज़ बरोज़ केसेस बढ़ने लगे। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक एक रोज़ में डेंगू के मजीद 96 केसेस सामने आए हैं। देहात में केसेस की तादाद 53 जबकि शहरी इलाकों में 43 है। रवा सीजन में देही इलाकों में 1007 जबकि शहरी इलाके में 650 केसेस रिपोर्ट हुए। DHO का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पिम्स अस्पताल में 23, पोली क्लिनिक में 3, होली फैमिली अस्पताल में डेंगू के 5 मरीज दाखिल हुए। निजी लेबॉर्ट्री से 51 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए। अब तक 5 अफराद डेंगू से जाँ बहक हो चुके हैं। और फैसलाबाद में पैनाडोल गोली की किल्लत ताहाल बरकरार है। दर्द और बुखार की दवा की तलाश में मरीज मारे मारे फिर रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे शाइस्ता शेख से, जो कि शहर की सबसे बड़ी मेडिसिन मार्केट चिन्योट बाजार में मौजूद हैं। शाइस्ता बताएगा अद्वियात की यहाँ पर क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, 2 हफ्ते से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है लेकिन पैनाडोल की किल्लत का मसला हल नहीं हो सका, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। बुखार और दर्द की तकलीफ के तहत वो पैनाडोल ही उनकी अवलीन तरजीह हुआ करती थी, जो कि अब मार्केट में मैसर ही नहीं है। रोज़ाना वो यहाँ पर ख़रीदारी की गर्ज से आते हैं, लेकिन जो मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पर उनको यही सुनने को मिलता है कि अभी तक पैनाडोल जो है वो मार्केट में नहीं आई है। तो शहरी के इस हवाले से यही इल्तजा कर रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि कंपनी के साथ मुज़ाकरात करे, कोई बेहतर हिकमत अमली मरतब करे, ताकि वो जो पैनाडोल उनकी दस्तरस में हुआ करती थी वो मार्केट में आना शुरू हो जाए और शहरियों को जो मुश्किलात दरपेश है वो हल हो सके, ताकि वो दर बदर की ठोकर खाने पर मजबूर ना हो। जी शाइस्ता शेख, अपडेट करने का शुक्रिया। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें जारी हैं। अमेरिका ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई है। जबकि IMF का भी कहना है कि वो सैलाब के बाद की सूरत हाल से निमटने के लिए पाकिस्तान की मदद करेगा। मज़ीद जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करने की यकीन दहानी करवा दी। ये यकीन दहानी अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को करवाई, जिन्होंने जनरल असम्बली इजलास की साइडलाइन पर उनसे मुलाकात की। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात में पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसान पर भी अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉर्जिवा से होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। IMF ने सैलाब के बाद की सूरत हाल पर पाकिस्तान की मदद की यकीन दहानी करवाई। वर्ल्ड बैंक के सदर डेविड पाल्मास ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की। वर्ल्ड बैंक के सदर को सैलाब के तबाहकारी से होने वाले नुकसानात के बारे में आगाह किया। सदर वर्ल्ड बैंक के हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। यूरोपीय यूनियन की सदर मिस अर्सला वैन डर लीयन ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर की भी मुलाकात हुई, जिसमें वज़ीर आज़म ने सदर जनरल असम्बली साबा करोसी को सैलाब की तबाहकारियों, मसला कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों, अफगानिस्तान की सूरत हाल और दुनिया में फैलते इस्लामोफोबिया से आगाह किया। सदर जनरल असम्बली ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान से मुकम्मल हमदर्दी और ताउन का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कहना है कि आर्मी चीफ की तैनाती इंतज़ामी मसला है। इमरान खान सिर्फ सियासत चमका रहे हैं। 1/3 पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है। ये नाइंसाफ़ी होगी कि हम डूब रहे हैं। IMF कर्ज की बात करे। तालिबान ने आर्मी बरादरी से किए गए वादे पूरे नहीं किए हैं। बिलावल भुट्टो ने OIC राब्ता ग्रुप इजलास में मसला कश्मीर भी उठाया।
वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का न्यूयॉर्क में एक और मसरूफ तरीन दिन। वजीर खारजा ने न्यूयॉर्क में OICC राब्ता ग्रुप इजलास में शिरकत की। अपने खिताब में बिलावल भुट्टो का कहना था कि कश्मीर में मुसलमानों को अक़लियत में बदलने की साजिश हो रही है। कश्मीर की हैसियत में तब्दीली ने मसला कश्मीर को मजीद मुतनाज़ बना दिया। मकबूजा वादी में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। जनूबी एशिया में अमन सिर्फ मसला कश्मीर के हल से मशरूत है। अक़लियतों के हकूक बारे इजलास से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत में अक़लियतें महफूज नहीं, पाकिस्तान में अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीह है। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती इंतजामी मसला है, इसका इख्तियार वज़ीर आज़म के पास है। 1/3 पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है। इमरान खान सियासत चमका रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि IMF को अपनी तखमीनों पर नजरसानी करना होगी। ये नाइंसाफी होगी कि हम डूब रहे हैं और IMF कर्ज की बात करे। फ्रांसीसी TV को इंटरव्यू में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से तबाहकुन सैलाब का शिकार हुआ। इस आफत ने सेहत, खुराक और हिफाजत के बहरान को जन्म दिया है। पाकिस्तान को फौरी तौर पर $30 अरब की जरूरत है। दुनिया से भीख नहीं चाहते, इंसाफ चाहते हैं। उनका कहना था कि तालिबान ने आलमी बरादरी से किए गए वादे पूरे नहीं किए, जिसकी वजह से तालिबान हुकूमत को तस्लीम नहीं किया गया। उम्मीद है ईरानी वजीर खारजा लड़की की हलाकत की शिफाफ तहकीकात कराएंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने डेनमार्क के हममनसब जैपे कोफोर्ड से मुलाकात की, जिसमें सरमायाकारी और तिजारत बढ़ाने के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जबकि अमेरिका की इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के CEO स्कॉट नॉर्थन से भी मुलाकात में बिलावल भुट्टो ने उन्हें पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की हंगरी के हम मनसब से मुलाकात हुई। मुलाकात में सियासी, इक़्तिसादी, सक़ाफ़ती, दिफ़ाई, अवामी राब्तों समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई, जबकि बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी अमूर भी ज़ेर बहस लाए गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर खारजा ने मौसमियाती इजलास की गोल मेज़ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की, जहाँ बिलावल भुट्टो ने हंगामी बुनियादों पर ग्रीन मार्शल प्लान तश्कील देने का मुतालबा किया। बिलावल भुट्टो ने शुरका से खिताब में कहा कि ग्रीन मार्शल प्लान मौसमियाती खतरात में घिरे ममालिक की हंगामी मदद में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान का गैस अखराज में हिस्सा महदूद, जबकि कुदरती आफात का सबसे ज्यादा शिकार है। सैलाब से कीमती जानों, मईशत और बुनियादी ढांचे का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सैलाब की तबाहकारियों की। नाज़रीन, सिंध में सैलाबज़दा मुतासरीन शदीद अजियत का शिकार हैं। मलेरिया और गैस्ट्रो समेत दीगर बीमारियां रोजाना अमवात का सबब बन रही हैं। जैकबाबाद की तहसील गड़ी खैरों में एक और बच्ची मौत के मुंह में चली गई। भूख और बीमारियों से परेशान मुतासरीन एहतजाज पर मजबूर हो गए हैं। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। सैलाब से ज्यादा सैलाब की तबाहकारियां, भूख और बीमारी मौत का सबब बन रही है। PDMA के मुताबिक सिंध में अब तक 724 अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं। जैकबाबाद में तहसील गड़ी खैर में 3 साला बच्ची नौशीन भी दम तोड़ गई। सिर्फ जैकबाबाद में 1.5 माह के दौरान खवातीन और बच्चों समेत 108 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। जिला कंबर शदात कोट में गैस्ट्रो और मलेरिया से 5 अफराद की जान चली गई। जांबाक होने वालों में बच्चे और बच्चियां भी शामिल हैं। मुतासरीन का शिकवा है कि इन्हें मच्छरदानियां फराम नहीं की जा रही, जिसकी वजह से रोजाना बीमारियों में इजाफा हो रहा है। खुराक और अद्वियात न मिलने की वजह से मुतासरीन का सबर का पैमाना भी लबरेज कर गया। दादू में सैलाब मुतासरीन ने इंतजामिया के खिलाफ मुजाहरा किया। कहा कि वो भूख और बीमारी से मर रहे हैं, लेकिन इंतजामिया को कोई फिक्र नहीं। मुतासरीन ने कहा कि उनके इलाकों में नकासियाब का बंदोबस्त किया जाए ताकि वो दोबारा अपने घरों में जा सकें। और दूसरी जानिब बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल के बाद अब मुख्तलिफ वबाई अमराज के फैलाव ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। हॉस्पिटल्स में जगह कम पड़ गई। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर वबाई अमराज की रोकथाम से मुतालिक फौरी इकदाम न उठाए गए तो मजीद अमवात का खदशा है। कोटा से फजल तवाब की ये रिपोर्ट। बलूचिस्तान एक पसमानदा सूबा है, जिसकी पसमानदगी में हालिया तूफानी बारिशों और सैलाब ने मजीद इजाफा कर दिया है। सूबे के 34 में से 32 अजला सैलाब से मुतासर हुए, जिनमें नसीराबाद डिवीजन के 5 अजला कच्ची, सोबतपुर, जलमक्सी, जाफराबाद और डेरालायार के कई देहातों में ताहाल सैलाबी पानी मौजूद है। मुतासरा अजला में मलेरिया, टाइफाइड, हैजे और डेंगू समेत दीगर वबाई अमराज ने संगीन शक्ल इख्तियार कर ली है। डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में जगह कम पड़ जाने के बायस मरीजों का खुले आसमान तले इलाज और मुआलजा किया जा रहा है। तिबी सहूलियात की अदम फरामी के बायस लोगों ने नकल मकानी भी शुरू कर दी है। छोड़ के अभी 2-3 दिन
हो गए, कोटिया आ गया, कोई निज़ाम सही नहीं है, ना डॉक्टर हैं, ना कुछ है, ना खाने के लिए, ना आटा, ना चीनी, ना पत्ती, कुछ खाने के लिए नहीं है। दूसरी जानिब डॉक्टर्स ने भी तिब्बी सहूलियात के अदम फरामी के हवाले से कई सवालात उठा लिए। यंग डॉक्टर्स के चेयरमैन डॉक्टर बाहर शाह कहते हैं कि अगर सैलाब से मुतासरा अजला में हंगामी बुनियादों पर इकदामात ना उठाए गए तो सूरत हाल मजीद गंभीर हो जाएगी। अब तो मलेरिया से अमवात आनी शुरू हो गई और एक मैसिव पैमाने पे आ रही हैं। मैं पहले भी बता चुका था गवर्नमेंट को और आज भी बता रहा हूँ कि जो DHQ हॉस्पिटल्स हैं, चाहे जाफराबाद का है या नसीराबाद का है, उनके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है वो कॉप कर सके इस आउटब्रेक को। तो लिहाजा आप लोगों ने एक बड़े पैमाने के ऊपर फील्ड हॉस्पिटल्स कायम करने हैं। महकमे सेहत हुकाम के मुताबिक नसीराबाद डिवीजन समेत दीगर अजला में अब तक वबाई अमराज से 40,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद खवातीन और बच्चों की है। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ फजल तवाब, 92 न्यूज, क्वेटा। और राजनपुर सैलाबज़दा इलाकों में तिबी सहूलियत का फुकदान है। तिबी माहिरीन ने फौरी तौर पर सैलाबज़दा इलाकों में मेडिकल रिलीफ कैंप के क़याम के लिए अपील कर दी। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद मंसूर। राजनपुर में एलर्जी, डायरिया, जल्दी अमराज, जिगर और मैदे की बीमारियों में गैर मामूली इजाफे के पेश नज़र वो सैलाब से मुतासरा इलाके जिनके रास्ते खुल गए हैं या जिनमें अभी तक मेडिकल रिलीफ कैंप कायम नहीं किए गए, तशवीश पाई जा रही है। मेडिसिन की लोगों को ज़रूरत है, बेसिक नीड्स लोगों की पूरी नहीं हो रही। कस्बों के अंदर, देहात के अंदर मेडिसिन मिल सके, जो उनकी राशन की ज़रूरियात हैं, जो उनको खाने पीने में मसले आ रहे हैं, सेहत का बहुत मसला आ रहा है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पहुँचने वाले तिबी माहिरीन का कहना है कि तीनों तहसीलों में फौरी तौर पर मेडिकल रिलीफ कैंप की जरूरत है। लोग मुजरे सेहत पानी पीने से, छोटे बच्चों में दूध की कमी, खड़े हुए सैलाबी पानी में नहाने और इस्तेमाल करने, मौसमी तब्दीली और खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने की वजह से सैकड़ों देहात में मुतासरीन बीमारियों में मुब्तला है, जिन्हें तिब्बी सहूलियात मैसर नहीं। हमारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ है तकरीबन जिसकी उम्र 10 से 15 दिन है। ना हमारे पास खुराक के पैसे हैं और ना ही हमारे पास कोई जगह बैठने की है, खुले आसमान में बैठे हुए हैं। और मेहरबानी करके हुकूमत हमें घर बना के दे। मुख्तलिफ बीमारियों के साथ साथ हामला खवातीन, नौज़ायदा बच्चे और डायलिसिस के मरीजों को भी परेशानी का सामना है, जिनकी मदद के लिए हुकूमत के साथ साथ मुखय्यर हजरात को भी मैदान में आना होगा। कैमरामैन नूर खान के साथ शहजाद मंजूर, 92 न्यूज़, राजनपुर। और नाज़रीन, हॉलीवुड अदाकारा और अक़वाम मुत्तहिदा की सफ़ीर एंजेलिना जोली ने पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए डू मोर का मुतालबा कर दिया है। एंजेलिना जोली का कहना है कि पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, दुनिया को उस पर जागना चाहिए। आने वाले हफ्तों में भरपूर मदद ना पहुंची तो बचने वाले भी नहीं बचेंगे। इस्लामाबाद से फैसल रजा खान की रिपोर्ट देखिए। सैलाब मुतासरीन के लिए पाकिस्तान आने वाली एंजेलिना जोली का नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर का दौरा। एंजेलिना जोली का पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारी पर दुनिया की तवज्जो मरकूज करवाने का आज़म। हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली का कहना है कि मैंने ऐसी तबाही अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखी। मुतासरीन को खुराक, शेल्टर, तिब्बी सहूलियात की हंगामी ज़रूरत है। पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, दुनिया को इस पर जागना चाहिए। ये बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी और मौत का मसला है। bearing the brunt of the disaster and the pain and the death. I am absolutely with you in pushing the international community to do more. I feel like we say that often. We speak of aid appeals and relief and support, but this is something very, very different. एंजेलिना जोली का मजीद कहना था कि हर जगह पाक फौज को आवाम की मदद करते और जिंदगियां बचाते देखा है। मुसीबत की इस घड़ी में मेरा दिल पाकिस्तानी आवाम के साथ है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में ईस्ट ऑफ इंग्लैंड से कामयाब होने वाले इमरान खान विजन पैनल के एजाज़ में मशरक़ी लंदन में शाया दिया गया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईस्ट ऑफ इंग्लैंड के अहदेदारान के साथ साथ कम्युनिटी की चीदा शख्सियात ने शिरकत की। सलीम साबरी की रिपोर्ट। मशरकी लंदन में इमरान खान विजन पैनल के एजाज में तकरीब का एहतमाम मशहूर सियासी और समाजी शख्सियत राजा शाकर कियानी और चौधरी बशारत ने किया। मुकामी रेस्टोरेंट में होने वाली पुरवकार तकरीब में पीटीआई ईस्ट इंग्लैंड के नौ मुंतखब
ओहदेदारान के साथ साथ कम्युनिटी की आला शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा कि इमरान खान की दुश्मनी में हुकूमत बुखलाहट का शिकार है और इन पर झूठे और बेबुनियाद केसेस बनाए जा रहे हैं। PTI ओहदेदारों का कहना था कि इमरान खान हकीकी मानों में आवाम का दर्द रखने वाला लीडर है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हालिया सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए उनकी अपील थी, जिस पर ओवरसीज में बसने वाले पाकिस्तानियों ने दिल खोल कर इमदाद दी। मुल्क की मौजूदा माशी हालात का बेहतर हल साफ और शफाफ इलेक्शन में है। अगर इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान 2/3 अक्सरियत के साथ कामयाब होंगे। ईस्ट ऑफ इंग्लैंड से मुंतखब होने वाले ओहदेदारान और पार्टी कारकुनान ने इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से इमरान खान पर झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं। हमें अदलिया पर पूरा यकीन है कि वो इंसाफ के तकाजों के मुताबिक फैसले करेंगे। सियासत जितनी गंदी इन लोगों ने कर दी इतनी थी नहीं। तो इमरान खान एक ऑनेस्ट लीडर है, उसका मुंह बोलता सबूत आपने देख लिया है कि जिस तरह कौम ने उस पर एतमाद करके, आप देखें कि हुकूमत में ना होते हुए उनकी एक कॉल पे लोग फ़ोनों पे अरबों रुपए भेज रहे हैं और वहाँ पे आवाम के लिए इमदाद भेज रहे हैं। मैं समझता हूँ ये मुंह बोलता सबूत है इस चीज़ का। इमरान खान जो है इस वक्त पाकिस्तान की अहम ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान दिन ब दिन जो है तकरीबन वो डाउन हो रहा है माशी लिहाज से, और अगर पाकिस्तान को इस्तेकाम बख्शना है माशी लिहाज से तो जितने जल्दी हो सकता है इलेक्शन कराएं। अवाम की भी यही डिमांड है और इमरान खान की भी। ये सिर्फ इल्ज़ामात की आते हैं और ये सियासी मुकदमात हैं और ये इनको आज अदालत में जाके मुंह की खाना पड़ी है कि जो उन्होंने दहशत गर्दी का मुकदमा किया और अदालत ने उनको खारिज कर दिया, क्योंकि दहशत गर्दी बनती नहीं है। अगर ये दहशत गर्दी बनती जो खान साहब के इन्होंने इल्ज़ाम लगाते था तो मरियम नवाज शरीफ यहाँ पे बैठ के आर्मी पे बोलता रहे, राना सनाउल्लाह बोलता, फिर वो सारे ही दहशत गर्द हैं। अगर खान साहब दहशत गर्द है ना तो मेरे ख्याल में दुनिया में कोई भी इंसान जो है ना दहशत गर्दी से पाक नहीं है। शुरका का मजीद कहना था कि माशी हालात का वाहिद हल इलेक्शन है। अगर साफ और शफाफ इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान 2/3 अक्सरियत से कामयाब होकर वजीर आजम बनेंगे। एशिया में चौधरी रमजान, मलिक साजिद, खान आमिर, एहसन शाह, रफाकत शाह और दीगर शख्सियात ने इमरान खान के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती किया। सलीम साबरी, 92 न्यूज, लंदन। लंदन के नवाही इलाके सलाव में पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन सलाव की जानिब से सैलाब ज़दगान की मदद के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तनमनजीत सिंह, सदर PTI साउथ ईस्ट मोहम्मद जाहिद राजा, नायब सदर PWA अब्दुल सत्तार समेत आम शख्सियात ने शिरकत की। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से भरपूर एहतियात दिए गए। मुतासरीन के लिए 7,000 पाउंड से ज़ायद का फ़ंड जमा किया गया। ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट। बरतानिया में पाकिस्तानी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए फंड रेजिंग की तकरीबात जारी। लंदन के नवाही इलाका सलाव में पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन सलाव की जानिब से फंड रेजिंग इवेंट में बरतानवी अरकान पार्लियामेंट भी शरीक हुए। तकरीब में सलाव के इलाका भर से ओवरसीज को शिरकत की दावत दी गई, जबकि MP तनमनजीत सिंह और सदर PTI साउथ ईस्ट मोहम्मद जाहिद राजा ने खसूसी शिरकत की। इस मौका पर शुरका को सैलाब से मुतासरा इलाकों के बारे में सूरत-ए-हाल से आगाह किया गया और मदद की अपील की गई और कहा गया कि मुश्किल की इस घड़ी में हम वतन भाइयों की हर मुमकिन मदद करें। जिसके बाद शुरका ने सलाब मुतासरीन के लिए दिल खोल कर मदद करते हुए 7,000 पाउंड से ज्यादा खतीर रकम जमा की। PWA के हॉल में मुनक्कद तकरीब में नन्हे बच्चों ने भी इस कार खैर में हिस्सा डालते हुए अपनी जेब खर्च के पैसे मुतासरीन के लिए बतौर फंड्स दिए। तकरीब से खिताब करते हुए सलाव के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तनमनजीत सिंह का कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में हम अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ खड़े हैं। सदर PTI साउथ ईस्ट मोहम्मद जाहिद राजा समेत दीगर ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी ने सलाह मुतासरीन के लिए दिलखोर का एहतियात दिए जो खुशाइंद है। जमा की जाने वाली रकम जल्द अज जल्द पाकिस्तान रवाना की जाएगी। हमने ये कम्युनिटी के लिए अरेंज किया और जो फंड रिलीफ है उसके लिए मतलब फंड रेजिंग की और बड़े शुक्रगुजार हैं जो हमारे भाई है और बहनें आई हैं जिन्होंने ये आज 7,105 पाउंड टोटल डोनेशन दी है। हमने आज यहाँ पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन में एक छोटा सा इवेंट किया है जिसमें पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा लोगों के लिए फंड इकट्ठे किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े शॉर्ट नोटिस पे हमने तकरीबन 7,000 से ज़ायद डोनेशन इकट्ठा किया है जो इंशाअल्लाह हम कुछ दिनों तक मुतासरीन तक पहुँचा देंगे। आज हमने सलाव में पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन के हॉल में एक फंड रेजिंग का एहतमाम किया था और माशाल्लाह लोगों ने यहाँ पर दिल खोल के चंदा दिया है और हमारा मकसद यही है कि जो हमारे पाकिस्तान में फ्लड की वजह से हमारे बहन भाई
अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और उसके बाद लाखों घर जो है तबाह हुए हैं, उनके लिए ये हमने फंड रेजिंग का एहतमाम किया था। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 40 ਸਲੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੰਨਾ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ because of that many of us got together and it was wonderful that Pakistan Welfare Association organised a fundraising event ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੱਲਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਰਦ ਹੋਇਆ सैलाब से मुतासरा इलाकों में मदद के लिए हुकूमत बरतानिया की जानिब से भी अहम ऐलानात किए गए जबकि बरतानिया में सिख कम्यूनिटी की सरकर्दा तंजीमात ने भी माली सपोर्ट के साथ मुतासरा इलाकों में रजाकाराना तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK। मारूफ अमरीकी कंपनी टेस्ला और स्पेस एक्स के बानी एलन मस्क से तफ्तीश के लिए ट्विटर के वकला ने तैयारियां पकड़ ली। कहते हैं तफ्तीश 3 रोज़ तक जारी रह सकती है। मीडिया के मुताबिक अदालत में दी गई दरख्वास्त में ट्विटर के वकला का कहना है कि वो एलन मस्क से उनके खिलाफ ट्विटर डील में धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में दायर मुकदमे में तफ्तीश के लिए तैयार हैं, जो कि 26 सितंबर से शुरू की जाएगी और 3 रोज़ तक जारी रह सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के वकला आने वाले दिनों में एलन मस्क के लेफ्टिनेंट जेरेड बर्चल और वकील एलेक्स स्पेरो से भी तफ्तीश करेंगे। अदालती दस्तावेज़ात में एलन मस्क से तफ्तीश के मनसूबों की खबर इस वक्त सामने आई है जब कंपनी और मस्क के वकला की जानिब से ट्विटर के शरीक बानी और साबिक CEO जैक डोर से मंगल के रोज़ तफ्तीश की गई। ये नए बयानात इस बात की अलामत हैं कि मस्क और ट्विटर के दरमियान कानूनी जंग शिद्दत अख्तियार करती जा रही है।